So, good afternoon, friends. In the last lecture, we learned about the generate and test method where we search all the possibilities until unless we find the goal state. Okay, when we find the goal state, we stop the algorithm, and this is generate and test. Generate all possible solution and test it, and if we achieve goal state, then stop it. Okay, so here is best first search. This is not BFS yani breadth search first, this is best first search. This is uninformed search, and best first search is informed search technique. In the informed search, we know that from the start state and goal state we have estimated cost of the path. Okay, so here is the start stage is S and goal state is G. Okay, so in this video we find the start state to goal state a path which gives quickly answer, not the optimum answer. Optimum means start state to goal state at minimum cost, and here we are greedy for the answer quickly, not the optimum answer, because AI is for the do work quickly. Okay, so in the best first search we follow Q data structure. In BFS we follow Q data structure, as well as we in BFS we follow Q data structure. So if we dry run this, so we start from S. From S we can go D, C and A. Cost is 2, 7 and 1. So in BFS we follow all the levels and all the branches. Okay, so now on this we search based on heuristic value, minimum heuristic value, we follow the path. What I'm trying to say, we choose that path that has minimum heuristic value. We are not comparing this value. This is the cost of S to A, S to C and S to D. Heuristic means we can go quickly from start state to goal state at minimum time, means quickly. Okay, so here is heuristic value is D has heuristic value 4 and C has heuristic value 2 and A has heuristic value 7. So we follow this path S to C. So now we have C to B 2 cost, C to D 4 cost, C to B 2 cost and C to D 4 cost. Now we calculate the heuristic value. B has heuristic value 6 and D has heuristic value 4. So now we explore this path. D to G, heuristic value is 0 and this is 5. Okay, so we follow the path from S to C, then D, then G. Cost is 7 plus 4 plus 5 which is 16. अब हम देखें क्या हम S से G इससे कम टाइम पे पहुंच सकते थे। S से हम अगर D पे जाते एंड D से G पे जाते, S से D पे जाते एंड D से G पे जाते, 1 plus 5 is equal to 6. We can go at cost 6, but we follow this path S to C, C to D, D to G, because we want quickly answer, not optimum answer. S to C, C to G, C to D and D to G can give answer quickly. Okay, हमने कौन सा पाथ फॉलो किया? S to C, C to D, D to G. क्या हमने S to A को एक्सप्लोर किया? नहीं. BFS में हम कर रहे थे, यस. बेस्ट फर्स्ट में कर रहे हैं, नहीं. S to D फॉलो किया, नहीं. उसके बाद C to B फॉलो किया, नहीं.
एंड D2G फॉलो किया, यस। सो अगर हम BFS यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च अगर फॉलो करते तो हमें एक लेवल के सारे ब्रांचेस को एक्सप्लोर करना पड़ता। नाउ बेस्ट फर्स्ट में हमने क्विकली इसको सॉल्व किया है बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक वैल्यू। क्या हमने सारी ब्रांचेस को एक्सप्लोर किया? नहीं, हमने कुछ ही ब्रांचेस को एक्सप्लोर किया जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे मिनिमम है। ओके, आप ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकाल भी सकते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस से। मींस S to G एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करें तो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी? दिस इज यूक्लिडियन वैल्यू। सो इसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या आ सकता है? अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें x और y के, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम एक एग्जांपल से एल्गोरिथम समझते हैं। सबसे पहले एट फर्स्ट क्रिएट एन ओपन लिस्ट प्रायोरिटी क्यू एंड इंसर्ट द स्टार्ट नोड S. Open priority queue. Priority queue means we put it on elements on based on higher priority. Higher priority means in the heuristic value we prior lowest heuristic value. ओके, तो सबसे पहले ओपन में S नोड इंसर्ट किया। क्रिएट एन क्लोज्ड लिस्ट टू कीप ट्रैक ऑल विजिटेड नोड्स। ओके, जब हम S को एक्सप्लोर करेंगे देन हम ट्रैक करने के लिए S को इसमें इंसर्ट कर देंगे क्लोज्ड में। मीन्स हम इसको एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो इसके सक्सेसर क्या हुए? D, C, A। अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो इसके सक्सेसर क्या हुए? C, D, A। प्रायोरिटी से एंटर करना है मीन्स लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू हैज़ हायर प्रायोरिटी। 2, 4, 7, 2, 4, 7। नाउ हम C को एक्सप्लोर करेंगे तो C यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड C क्लोज में एंटर हो जाएगा। C यहाँ से पॉप होगा एंड क्लोज में पुश होगा। जब हम C को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसके सारे सक्सेसर को हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। B हैज़ 6 ह्यूरिस्टिक वैल्यू। सो नाउ हमारी क्यू क्या बनी? हमारी प्रायोरिटी क्यू क्या बनी? D, B, A। 4, 6, 7। This is our new queue, open queue. Okay, then we explore D. We put it on D on closed. Pop D from open, push D on closed. Okay, तो नई क्यू क्या हुई? G, B, A। G हैज़ ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 मीन्स G से G की कॉस्ट क्या हुई? 0 एंड देन 6 देन 7। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? G एंड दिस इज गोल स्टेट। रिपीट अंटिल गोल इज फाउंड और ओपन इज एम्प्टी। यानी जब तक हमें गोल स्टेट मिल नहीं जाती या ओपन एम्प्टी नहीं हो जाता। अगर ओपन एम्प्टी हो गया मीन्स गोल स्टेट इस क्यू में नहीं है। रिमूव द नोड विद द लोएस्ट ह्यूरिस्टिक फ्रॉम द ओपन, जो हमने अभी किया, एंड इफ n इज अ गोल नोड स्टॉप एंड रिटर्न पाथ S, C, D, G। Otherwise generate all successor node of n for each successor if the successor is not in open or not or close compute heuristic and add it on open। जब हमें सक्सेसर ओपन में नहीं है एंड क्लोज्ड में नहीं है, हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू कंप्यूट करनी है एंड एड इट ऑन ओपन। मीन्स अगर ह्यूरिस्टिक वैल्यू नहीं है तो कैलकुलेट करनी है, देन हमें उसमें ऐड करना है ओपन में। मूव n टू क्लोज्ड लिस्ट। अगर जब हमने इसको एक्सप्लोर कर दिया देन क्लोज्ड में डालना है। इफ ओपन इज एम्प्टी गोल नॉट फाउंड एंड रिपोर्ट दैट नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। मीन्स अब हम ये बात कर रहे हैं अगर हमने सारी नोड्स को एक्सप्लोर कर दिया एंड ओपन एम्प्टी है एंड क्लोज्ड फुल है तो मीन्स हमारा गोल नोड इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। रिपोर्ट दैट नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, तो हम इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। हमने पढ़ा है बेस्ट फर्स्ट सर्च बेस्ड ऑन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग बेस्ड ऑन इन्फॉर्म्ड सर्च
heuristic value and we explore path that has low heuristic value, we don't have optimum answer, we have quickly answer, because AI is based on answer quickly. Okay, so at this time we traverse level order. In BFS we have order of b की power d, time complexity. Here from we have less than b की power d time complexity. Okay, at first we calculate start and goal state heuristic value. This is 4 7 6 2 4 0. ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपको कभी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके ह्यूरिस्टिक वैल्यू नहीं निकालने होंगे, ये दिया होगा. If the successor is not open or not in close, compute heuristic and add it on open. आपको दिया होगा 4 7 6 2 4 0 ह्यूरिस्टिक वैल्यू आपको दी होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आप ग्राफ में निकालते हो एंड यहाँ पे ग्राफ बनाना आपके एग्जाम के लिए पॉसिबल नहीं है. तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू आपको दी होगी. कोस्ट दी होगी, एस से ए जाने की कोस्ट 2, एस से सी जाने की कोस्ट 7 एंड एस से डी जाने की 1. ये आपको कोस्ट दी होगी. ओके, सो हमें हमारा अगर ऑप्टिमम आंसर अगर आता एस से डी एंड डी टू जी, दिस इज 6 आता, लेकिन हमें क्विकली आंसर चाहिए, तो हमारा क्या आया एस टू सी, सी टू डी एंड डी टू जी. ओके, सो उसके बाद हमने क्या किया, हमने स्टार्ट स्टेट से सारे पाथ को एक्सप्लोर किया डी सी ए. उसके बाद हमने सी को एक्सप्लोर किया, फिर हमने डी को एक्सप्लोर किया, फिर हमारा पाथ मिला एस सी डी जी. ओके, आफ्टर दैट वी क्रिएटेड 2 क्यू ओपन एंड क्लोज्ड. व्हेन वी रीच ऑन एलिमेंट पुट इट ऑन ओपन, व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग द नोड्स वी पुट इट ऑन क्लोज्ड, मतलब वी आर विजिटेड टू दिस नोड. ओके, देन वी फाइंड आउट द फाइनल पाथ एस सी डी एंड जी. ओके, तो इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में.